بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ایک نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے، شرط ریٹن بائی نبیلہ عزیز۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ یہ بیسیکلی ہے ونی بیسڈ، یعنی کہ خون بہا بیسڈ پہ یہ اسٹوری ہے، اور باقی مجھے بھول گئی، یہ کافی ٹائم پہلے پڑھی ہوئی تھی، تو ابھی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ لگ جائے گا پتہ کہ کیڑی بیسڈ ہے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے دو ایپیسوڈ میں مک جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیں پڑھتے ہیں شرط ریٹن بائی نبیلہ عزیز، فرسٹ پارٹ۔ زیست مر گئی ہو، جواب تو دے دو۔ سحر سے پکارتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ محترمہ زیست صاحبہ ابھی تک بیڈ پر لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوں گی، مگر خلاف توقع اسے بیڈ کی بجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے تپ چڑھ گئی تھی۔ وہ اپنی گھنی لمبی مڑی ہوئی پلکوں پر بڑی مہارت اور بڑی احتیاط کے ساتھ مسکارا لگانے میں مصروف تھی۔ اس نے سحرش کے پکارنے کا یا پھر اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، بس اپنے کام میں مشغول رہی، انتہائی انہماک کے ساتھ۔ گونگی ہوگی اور جواب نہیں دے سکتی، وہ غصے سے کہتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ سے ہٹ کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ جب تک میں مسکارا نہ لگا لوں چپ چاپ کھڑی رہو۔ دوبارہ نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے اپنے سابقہ کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اپنے حسن کی نوک پلک سنوارنے سے خوب آتا تھا، وہ اپنی خوبصورتی سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ اپنے آپ کو ذرا سے سنوار لیتی تھی تو بھی اس کی خوبصورتی دو آتشیں ہو کے سامنے آتی تھی، دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ زیست کے مسکارا بند کرتے رکھنے پر کاجل اٹھا لیا اور آئینے میں بغور دیکھتے ہوئے دونوں آنکھوں میں کاجل کی لکیر کو برابر کیا تھا۔ اب بولو کیا بات ہے؟ اس نے میک اپ کے سامان سے پنک کلر کا بلش آن ڈھونڈا، انداز کافی لاپرواہ اور شہانہ تھا۔ سحری چل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لپسٹک اس کے میک اپ کا آخری ٹچ تھا، جس کے بعد اس نے بال سنوارے اور ہلکی پھلکی جویلری پہن کر حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس وہ پلٹ کر سحرش کی طرف چلی گئی۔ ہے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ابھی تک اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ میں نہیں ہو رہی تیار، میں نے نہیں جانا، تم لوگ جاؤ۔ رخ موڑتے ہوئے وہ کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ کیوں نہیں جا رہی تم؟ ہم لوگوں کی تیاری کروا کے اب تمہیں نہ جانے کا خیال آیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ زیست کاٹ کھانے کو دوڑی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ لوگ روزانہ پروگرام بناتی تھی کہ سنڈے کے روز گھومنے پھرنے اور ہوٹلنگ کرنے چلیں گی، اور پچھلے 2 ہفتوں سے ان کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنی پاکٹ منی جمع بھی کر رکھی تھی تاکہ شاپنگ زیادہ ہو سکے، اور آج ان کا پکا پروگرام تھا، لیکن اینڈ ٹائم پر سحرش کا انکار۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، بس میں نہیں جاؤں گی۔ سحرش سنجیدہ تھی۔ انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، زیست جھنجھلائی۔ وجہ یہ ہے کہ سحرش کے نئے کوٹ سوٹ کا دوپٹہ جل گیا، وہ بھی تمہارے والی استری سے، جس کو اتنے دنوں سے خراب کر کے تم نے ہمارے کمرے میں ڈال رکھا تھا۔ ثانیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زیست کی بات سن لی تھی۔ سحرش بیڈ پر بیٹھی کتاب چہرے کے سامنے کی ان دونوں کی موجودگی اور گفتگو سے لا تعلق نظر آ رہی تھی۔ تو یار کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، اتنا بڑا ہاسٹل ہے، لڑکیوں اور دوپٹوں سے بھرا پڑا ہے، کسی سے تو مل ہی جائے گا۔ ہاں، ہم ہر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لائٹ پرپل کلر کا دوپٹہ ہے؟ اگر ہے تو پلیز آج شام تک اتار دے دیں، ہماری بچی کا دوپٹہ جل گیا، وہ بیچاری بیٹھی رو رہی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ثانیہ نے کافی سلگ کر تمسخرانہ انداز میں نقشہ کھینچا تھا۔ ہاں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، اس نے لاپرواہ انداز میں کہہ کر کندھے اچکا، اور ایسا کام یقیناً تم ہی کر سکتی ہو، ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ ثانیہ نے اسے جتایا۔ ہاں واقعی ایسا کام میں ہی کر سکتی ہوں، کیونکہ ایسے کام کرنے کے لیے انسان میں کچھ ایکسٹرا کوالٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کپڑے چینج کرو سحرش، میں ابھی دوپٹہ لے کر آتی ہوں۔ زیست کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سحرش کو زیست کے مزاج کا خوبی پتہ تھا، وہ جتنی شرارتی اور ہنسمکھ تھی، اتنی ضدی اور رسیلی بھی۔ اس وقت وہ اس کے لیے دوپٹہ ڈھونڈنے گئی ہوئی تھی اور اسے کپڑے چینج کرنے کا کہہ کر گئی تھی، لہٰذا بہتری اسی میں تھی کہ اس کے آنے سے پہلے کپڑے چینج کر لیے جائے۔ کتاب سائڈ پر رکھی اور ثانیہ سے کپڑے لے کر واش روم میں چلے گی۔ ہیلو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ رمشا نے کمرے میں داخل ہوتے کافی فریش اور کھنکتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ ہیں یہاں اتنی ویرانی کیوں ہے؟ کہاں گئی سب؟ محترمہ زیست صاحبہ سحرش کے لیے دوپٹہ ڈھونڈنے بلکہ کسی سے مانگنے گئی ہیں، اور محترمہ سحرش صاحبہ کپڑے چینج کرنے واش روم گئی ہوئی ہیں۔ یار ہم تو اپنے ٹائم سے کافی لیٹ ہو جائیں گے۔ رمشا کو نئی فکر نے آن گھیرا۔ کوئی بات نہیں زیست صاحبہ، وہ بھی مینج کر لیں گی۔ ثانیہ کو زیست کے حرفن مولا ہونے پہ چڑ ہوتی تھی، وہ اپنی بات سے اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی، جس کام کا ارادہ کر لیتی وہ کر کے رہتی تھی، اور ایسے میں ثانیہ اس کی ذہانت اور صلاحیتوں سے آنکھیں پھیر لیتی تھی۔ جہاں زیست کی تعریف کا کوئی پہلو نکل رہا ہو وہاں بھی بخل سے کام لے جاتی تھی، لیکن زیست کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب میں نے لگتا ہے جہاں ناول کا نام شرط ہے نا، اے ثانیہ بی بی نے کوئی زیست نال پنگا پانا شرط چھوڑتا نہ۔ وہ ثانیہ سے نوک جھونک چلنے کے باوجود ثانیہ کو بھی اتنا ہی چاہتی تھی جتنا سحرش، ارمین اور رمشا کو۔ اسے 5 دوستوں کا یہ گروپ بہت عزیز تھا، جسے اس نے 5 اسٹار کا لقب دے رکھا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ زیادہ دیر دل میں میل نہیں رکھتی تھی، اس کی نیت اور اس کا دل سب کے لیے ایک جیسا تھا، نرم اور صاف شفاف۔ جیسے ہی سحرش کپڑے بدل کر آئی، زیست اور ارمین نے بھی اسی وقت کمرے میں قدم رکھا۔ زیست کے ہاتھ میں لائٹ پرپل کلر کا استری شدہ دوپٹہ تھا۔ اب اور کیا کرنا ہے؟
वो सहरिश से पूछ रही थी, कुछ नहीं, मैं बस ये लिपस्टिक लगा कर ज्वेलरी पहन लूँ। ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ ब्रेसलेट और आवेज़े वगैरह ही थे जो इन सब ने ही पहन रखे थे, यही इनकी ज्वेलरी की हद थी। वार्डन को पहले बता रखा था, इसलिए इन्हें हॉस्टल से निकलने में महज 5 मिनट लगे थे। वाह, हॉस्टल लाइफ दिया है वैसे चंगी है, मुँह चुको जितने मर्जी चले जाओ यार, अब बस भी करो, और कितनी शॉपिंग करोगी, मुझे तो भूख भी लगने लगी है। जीत अपने लिए ब्लैक जीन्स और साथ में ढीला ढाला कुर्ता पसंद कर थी जब रिमशा ने दिखाई दी थी। जीत जब से शॉपिंग मॉल में दाखिल हुई थी कुछ ना कुछ खरीदती जा रही थी। इसने ज़्यादा कपड़े और जूते खरीदे थे और हमेशा शॉपिंग के दौरान इसकी अव्वलीन तरजीह कपड़े और जूते ही होते थे। यार खरीदने वाली चीज़ें यही होती हैं, और क्या होता है। लेकिन यार मेरी अभी कुछ और चीज़ें रहती हैं, वो तो ले लूँ। जीत को अपनी चीज़ों की लिस्ट याद आ गई। हरगिज़ नहीं, अब ज़रा भी सब्र नहीं हो रहा, बाकी चीज़ें नेक्स्ट संडे को आकर ले लूँगा। रिमशा ने इसके साथ बाहर निकलते हुए जीत को शॉपिंग मॉल के मरकजी दरवाजे की सिमत खींचा। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही इन पांचों की हंसी बेक वक्त थम गई, क्योंकि इन पांचों की नज़र बेक वक्त सामने की तरफ उठी थी जहां इनका यूनिवर्सिटी फेलो किसी लड़की के साथ मुस्कुराता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा था। और इसको ऐसे पुरसकून और बेफिक्र अंदाज में देखकर इन पांचों में से एक का दिल जैसे बुझ कर राख हो गया। चेहरे पर एक साया सा लहरा गया, जैसे इसके हाथ से कोई चीज़ हमेशा हमेशा के लिए छिन गई हो। जिस बमुश्किल इसे अपने साथ घसीट कर टेबल तक लाई और खुद कुर्सी खींच कर इसे बिठाया भी था। सभी अपनी अपनी चेयर्स पर टिक गई, लेकिन सभी अपनी अपनी जगह पर खामोश थी। मामला एक का था, लेकिन दुख और अफसोस पांचों को हो रहा था। एहसान आज़म के साथ वो लड़की कौन हो सकती है भला, जीस जैसे खुद कलामी के से अंदाज में कह रही थी। मुझे तो लगता है इसकी मंगेतर ही होगी, वो बगैर किसी रिश्ते के और बगैर किसी वजह के लड़कियों के साथ घूमने फिरने का आदी नहीं है। ये इजहार ख्याल सानिया का था। ज़रूरी तो नहीं है कि मंगेतर हो, इसकी कज़न भी हो सकती है। सैरिश ने खुशकुमानी का दामन थामा। पहले कभी इसकी किसी कज़न को इसके साथ देखा तुमने? अरमीन ने इसकी खुशकुमानी पर पानी फेर दिया। तुम बताओ रिमशा, एहसान आज़म के साथ लड़की कौन हो सकती है? जीस ने गुमसुम बैठी रिमशा को देखा। मैं कुछ नहीं जानती, वो रो देने को थी, लहजा रोहांसा हो रहा था। अपनी इन्हीं बातों की वजह से तुमने आज ये दिन देख रही हो। इतनी जल्दी हथियार डालना होते तो ऐसे कामों में हाथ ही क्यों डालती हो? जीस को रिमशा पर एकदम से गुस्सा आया। मैंने हथियार डाले या फिर वो खुद ही ऐसा है, बेहिस और पत्थर? मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी कुछ भी तो असर नहीं कर सकती इस पर। रिमशा अपने आंसुओं को बमुश्किल रोके हुए थी। हाँ तो ठीक करता है ना वो, जब तुम्हें खुद ही इसे मतवजा करने नहीं आता तो वो भला कैसे तवज्जो दे? अजीज़ को गुस्सा आता तो वो किसी को भी खरी खरी सुना सकती थी, मुकाबिल चाहे कोई भी होता। और इस वक्त रिमशा की तबीयत साफ़ हो रही थी। कैसे मतवजा करती? ये तो दिल के मामले, यहाँ किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता, ना किसी का दिल जीता जा सकता। ये सब किताबी बातें। मर्दों का दिल जीतना कौन सा मुश्किल काम है, बस इंसान में सलाहियत होना चाहिए। अफसोस रिमशा बीबी, तुम में इतनी सलाहियत ही नहीं है कि तुम किसी मर्द का दिल काबू कर सको। अजीज़ गुस्से के बायस जो मुँह में आया कहती चली गई, मगर सानिया को इसकी बात बहुत चुभी थी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? किसी भी मर्द का दिल जीत सकती हो? सानिया ने काफ़ी तंज़ी और तमस्कराना अंदाज में पूछा था। अजीज़ इसके सवाल पर चौंक गई, मगर डगमगाई नहीं। हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं किसी भी मर्द को बेवकूफ़ बना सकती हूँ। रिमशा तो सच्ची मोहब्बत करके भी नाकाम रही, मगर मैं झूठी मोहब्बत का नाटक करके किसी को पागल बना सकती हूँ। अजीज़ ने पूरे इत्मीनान और यकीन से कहा था। देखिया मतन क्या सी ना, अतीली सानिया ने लानियाँ थे, उन्हें फुफे कुटनी ने लाई। ये सिर्फ कहने की बातें मोहतरमा अजीज़ साहिबा। सानिया तंजिया मुस्कुराई। एक तो अजीज़ ने ना ओवर एफिशिएंट बनना, ओवर एक्टिंग करनी है ने जाके, तो आप भी फंसेगी। और सानिया वगैरह ने तीली ला के नहीं फंसाना। मैं अगर इसे साबित भी कर दूँ तो? अजीज़ चैलेंजिंग अंदाज में बोली। तो मैं तुम्हें 10,000 कैश दूंगी इनाम में, और इसी जगह इसी होटल में डिनर भी दूंगी। और अगर तुम हार गई तो तुम्हें 20,000 कैश और इसी होटल में डिनर देना पड़ेगा। सानिया ने शर्त लगाई। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब तुम बताओ कौन है वो जिसका दिल मुझे जीतना है? अजीज़ ने हामी भर ली थी, जबकि सहरिश इसे ऐसी किसी शर्त कबूल करने पर घूरती रह गई। बताती हूँ, सानिया ने पुरसोच अंदाज में कहते हुए आसपास नजर दौड़ाई, मगर कोई ऐसा चेहरा या पर्सनैलिटी नजर न आई जिसका वो इस शर्त के लिए इंतखाब करती। चारों तरफ देखते हुए मायूस हो गई तो बेसाख्ता इसकी नज़र दरवाजे की सिमत उठी जो सानिया के बिल्कुल सामने था, जबकि अजीज़ की दरवाजे की तरफ पुश थी। सामने वाले की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सानिया के चेहरे पर चमक आ गई। ये जो आदमी इस तरफ आ रहा है तो मैं इसी को बेवकूफ़ बनाना है। सानिया ने आहिस्ती से कहा। अजीज़ ने इत्मीनान से गर्दन मोड़कर देखा। पर्सनैलिटी वाकई गजब की थी, वो इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनने वाला लगता नहीं था। बैठे बैठे बातों बातों में इन लोगों ने इतनी बड़ी शर्त इतनी आसानी से लगा ली कि एक पल के लिए भी अच्छा बुरा नहीं सोचा था। लेकिन इन दोनों से हटकर सहरिश काफ़ी मुतफक्कर हो रही थी, क्योंकि इसे पता था कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो सानिया तो साफ बच निकलेगी, लेकिन जीत ज़रूर फंस जाएगी। तो जी पोती ओवर एक्टिंग करेगी उन्हें फंसना ही है। जी ओवर एफिशिएंट बनेगी अपने आप को साबित करने के लिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो फिर फंसेगी। तो सही चित्र पड़े। और इसी डर से सहरिश ने अजीज़ को आंखों ही आंखों में बाज रहने के कई इशारे कर डाले, मगर वो बाज रहने वाली कब थी? अपने कहे से पीछे हटना इसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता था। शायद ये भी इसकी रगों में दौड़ते खून की खासियत थी। अजीज़ की बहुत ख़तरनाक काम है, इसमें हाथ मत डालो। सहरिश रह न सकी तो कह दिया।
ख़तरनाक काम में तो मज़ा आता है डियर। ज़ीस लापरवाही से मुस्कुरा कर कहती अपने बैग से मोबाइल और वॉलेट निकालने लगी। इतने में किसी के मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। ज़ीस ने चौंक कर आवाज़ की सिम देखा, इस आदमी का मोबाइल बज रहा था। ज़ीस कुर्सी धकेल कर खड़ी होगी, वो अपने सेल पर आने वाली कॉल यकीनन डिस्कनेक्ट कर चुका था। शायद वो खाने के दौरान डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ भी कोई मुस्तकिल मजाज आदमी था। सेल दोबारा बजने लगा। ज़ीस को अपनी प्लानिंग आसान लगने लगी थी। इसके पहुंचने तक वो कॉल दोबारा बंद कर चुका था। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ज़ीस ने इसके करीब खड़ी पूछ रही थी। इसने चौंक कर ज़ीस की सिम देखा। लाइट ग्रे और लाइट पिंक कलर के कम्बिनेशन की लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस, बालों में ब्राउन कलर के ग्लासेस अटकाए, तीखे और पुरकशिश नैन नकुश की मालिक इंतहाई स्टाइलिश लड़की बहुत इत्मीनान से इसके मुकाबले वाली चेयर पर बैठने की इजाज़त तलब कर रही थी। वो हैरान तो हुआ, मगर फिर भी इसे बैठने की इजाज़त दे दी। बैठिए प्लीज़, इसने इशारा किया। थैंक यू, संजीदगी से शुक्रिया अदा करती हुए बैठ गई। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। वो इंतहाई संजीदा और शाइस्ता अंदाज में बात कर रही थी, जबकि वो महज सवालिया नज़रों से देख रहा था। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, इसका फ़ोन एक बार फिर बजा। हेलो, इसने कॉल रिसीव कर ली। जीसी से सरता पा जायज़ा लेती नज़रों से देखने लगी और दिल ही दिल में इसकी पर्सनैलिटी को सराहे बिना न रह सकी। वो हकीकतन मर्दाना वजाहत से माला माल था और इसकी शानदार शख्सियत पहली नज़र में मुतासिर करने की खासियत रखती थी। मैं कल आपको ऑफिस में मिलूंगा, इस वक्त बिजी हूँ, बाय। इसने दो टोक कहते फ़ोन बंद कर दिया। जी मैम, आप कुछ कह रही थी शायद। वो दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा हो चुका था। सर, मेरी मजबूरी है कि मैं एक चीज़ की आदी हो जाऊँ या फिर इसे पसंद करूँ तो इसके बगैर नहीं रह सकती। मैं पिछले 2-3 साल से एक ही रिंगटोन यूज़ कर रही थी, मगर कुछ रोज़ पहले वो टोन मेरी दोस्त से मेरे सेल से डिलीट हो गई। मैंने वो ट्यून हर जगह ढूंढी मगर मुझे नहीं मिली, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो ट्यून आपके सेल पर एज अ रिंगटोन सुनी है। जीस ने इस आदमी को मुतमिन करने के लिए काफ़ी तफसीली वजाहत दी थी। तो अब इसके लिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो काफ़ी सुकून से पूछ रहा था। अगर आपको बुरा लगे तो क्या आप वो ट्यून मेरे सेल पर डाउनलोड कर सकते हैं? जीस ने अपना सेल सामने किया। इस आदमी ने चंद सेकंड के लिए कुछ सोचा, फिर अपना सेल उठाकर जीस के सामने रख दिया। जो रिंगटोन आपको पसंद है आप खुद सेंड कर लें। जीस इसकी ऐसी नवाजिश पर खुश और हैरान हुई थी, मगर इसने जाहिर नहीं होने दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो इसका शुक्रिया अदा करके सेल उठाकर ब्लूटूथ ऑन करके ट्यून सेंड करने लगी, लेकिन ब्लूटूथ पर इस आदमी का रीनेम पढ़ के चौंक गई। अफरीदी? इसने हैरत और परेशानी से दोबारा इस नाम को पढ़ा और फिर इस आदमी को दोबारा एक नज़र देखा। वो वेटर की तरफ मतवजा था। वेटर टेबल पर खाना लगा रहा था। बेटे की रुखसत होते इस आदमी ने जीस की सिम देखा। वो एकदम नज़रों का जाविया बदल गई। वो अपनी परेशानी इस पर आया नहीं होने देना चाहती थी। इसने बहुत तेज़ी से रिंगटोन सेंड करने के साथ साथ इस आदमी के नंबर से अपने नंबर पर एक मैसेज भी सेंड कर दिया, ताकि वो इसका नंबर तो जान लेती। 5 मिनट में इस काम से फारिग होते इसने सेल वापस इस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। थैंक्स अगेन सर। वो शुक्रिया अदा करते हुए हल्के से मुस्कुराई, लेकिन इस आदमी की नज़र इसकी दिलकश मुस्कुराहट पर ठहर गई थी। मुकर्रम खान अफरीदी कहते हैं मुझे। इसने काफ़ी मुहज़्ज़ब अंदाज में अपना नाम बताया, क्योंकि वो बार बार इसे सर कह रही थी, और मुझे लोग जीस तली के नाम से पुकारते हैं। इसने भी जवाबन अपना नाम बताया। नाइस नेम। वो सराहे बिना नहीं रह सका। आपका नाम भी आपकी पर्सनैलिटी पर काफ़ी सूट करता है। इसने भी सच्चे दिल से तारीफ़ की। थैंक यू मैम। वो हल्के से मुस्कुराया। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। वो कुर्सी धकेल कर खड़ी हो गई। मुकर्रम खान अफरीदी ने इसे दूर तक देखा था, यहाँ तक कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। इसके जाने के बाद इसे एहसास हुआ कि वो अच्छी, पुरएतमाद और बावकार लड़की थी, क्योंकि जब वो इसके पास आई थी तो इसने यही सोचा था कि ख्वाम का गले पड़ने की कोशिश में है, लेकिन जबकि इसने तो मतलब की बात के सिवा और कोई दूसरी बात भी नहीं की थी। आजकल के लड़के लड़कियों की तरह ना तो इसने नंबर मांगा और ना ही इसका नाम पूछा था, बल्कि नाम भी इसने खुद ही बताया था। इसलिए मुकर्रम को वो अच्छी लगी थी, मगर अफसोस कि दोबारा मुलाकात नहीं हो सकती थी। वो खाना खाते हुए सोच रहा था, और जैसे वो खाना खाने के बाद अपना मोबाइल और चाबी उठाते हुए कुर्सी से खड़ा हुआ, इसकी नज़र ठिठक गई। सामने बिना लेडीज़ वॉलेट पड़ा हुआ था, और यही वॉलेट थोड़ी देर पहले इसने इस लड़की के हाथ में देखा था। ओह नो, वो लड़की अपना वॉलेट भूल गई। इसने परेशानी से कहते हुए हाथ बढ़ाकर टेबल से वॉलेट उठा लिया और बिल पे करके तेज़ी से बाहर निकल आया, लेकिन हर जगह मतलाशी नज़रों से देखने के बावजूद इसे वो लड़की कहीं भी नज़र नहीं आई। वो अफसोस से वॉलेट को देखते हुए अपनी गाड़ी में आन बैठा। इस लड़की से रब्ते का कोई ज़रिया भी तो नहीं था। चल कोई नहीं, जड़े पैसे हो आप तो खर्च लेंगे। कार्ड कूड भावें वो डब्बे में डाल देना, वो जो होता नहीं बना होता पोस्ट वाला डब्बा, उसमें डाल देना, उसके घर पहुंच जाएगी खुद ही, अगर कोई कार्ड हुआ तो। बाकी वॉलेट में पैसे पूसे तुम शॉपिंग कर लेना। मान लो जीस साहिबा, आप अपने प्लान में फ़ेल हो चुकी हैं, और ये कि आपने सिर्फ शर्त ही नहीं हारी बल्कि अपना पैसों से भरा वॉलेट भी हार चुकी है। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी जब इस आदमी की तरफ से कोई रिस्पांस ना मिला तो सानिया वगैरह ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जीस तो अपनी जगह मुतमिन थी, क्योंकि इसके पास इस आदमी का नंबर मौजूद था। वो जब चाहती कांटेक्ट कर सकती थी। बस अभी वो ये देखना चाहती थी कि वो आदमी कब तक कांटेक्ट नहीं करता। अलबत्ता दिल में ये भी शक था कि वॉलेट इस आदमी को मिला भी है या नहीं। हो सकता है कि उठकर चला गया और इसने टेबल पर वॉलेट देखा ही ना हो। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर सचमुच जीस खसारे में रह गई थी,
क्योंकि इसने वॉलेट भूलने वाली गलती को हकीकत का रंग देने के लिए वॉलेट में अच्छी खासी भारी रकम छोड़ी थी और इसके अलावा कुछ कार्ड्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी थे। फिर भी इस आदमी ने रब्ता नहीं किया। क्या वजह थी आखिर? वो शक्ल सूरत से अपनी पर्सनैलिटी से तो ऐसा नहीं लगता कि पैसे देकर बेईमान हो जाता। उन्हें मेरा मशवरा सुन लिया। किस सोच में गुम हो मोहतरमा? मेरी मानो तो अपने वॉलेट की रिपोर्ट दर्ज करवाओ। सानिया ने मुफीद मशवरा दिया और रिमशा वगैरह ना चाहते हुए भी हंस पड़ी थी। मेरा वॉलेट वही शख्स वापस करेगा और बहुत जल्द वापस करेगा। अजीज़ का लहजा पूरी यकीन और मजबूत था। वो चारों देखती रह गई। ये कैसी दोस्ती है कि आप सारे रल के एक बंदे को गलत चीज़ के लिए उकसा रहे हो? मैं तो नहीं ऐसी दोस्ती को मानती। लाना तो ऐसी दोस्ती भी। क्या खुद से कॉल करोगी? इसे कॉल करोगी? सानिया को मौका मिला था इसलिए खूब बोल रही थी। कॉल भी वो खुद करेगा। इतना यकीन किस बात पे है? रिमशा ने पूछा। इसका नाम जानती हो तुम? जीस ने रिमशा को देखकर इस्तफसार किया। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। मुकर्रम खान अफरीदी नाम है इसका। इसका ताल्लुक़ पेशावर से होगा और इस लिहाज से तुम जान सकती हो कि मैं ये बात इतने यकीन से क्यों कह रही हूँ। जीस ने बड़े तहम्मुल और सुकून से बम फोड़ा था। वो सभी चौंक उठी थी जबकि सहरिश के चेहरे पर परेशानी हलकूरे लेने लगी। मुकर्रम खान अफरीदी? इसने ज़िरलब दोहराया। जीस पागल हो गई? तुम अभी भी इस आदमी से कॉन्टैक्ट करना चाह रही हो? सहरिश होल रही थी और ऐसी परेशानी रिमशा और अरमीन वगैरह के चेहरे पर थी। जीस ने इनको देखकर मुस्कुरा दी। इट्स ओके यार, वो अगर अफरीदी ख़ानदान का सपूत है भी तो मैं भी हशमत अली खान की बेटी हूँ। डर किस बात का? वो बेपरवाह थी जबकि सहरिश के चेहरे पर खौफ था। अगर तुम कहो तो मैं अपनी शर्त वापस ले लेती हूँ। सानिया ने अनायत करना चाहिए। हरगिज़ नहीं, मैंने जो कहा मैं करूँगी ज़रूर। वो शख्स चाहे कोई भी हो। जीस पीछे हटने को तैयार नहीं थी और सानिया को भी इससे यही उम्मीद थी। वो अंदर से दिल खोल कर मुस्कुराई। लानत अंदर दोस्ती होते हैं ना अजीज़ तो बाजी सही चित्र बजने जिदा भी बजने मुझे बड़ी खुशी होगी। वो पिछले 4 दिन से कराची गया हुआ था। ऑफिस की एक डील प्रॉब्लम कर रही थी, इसलिए मुनासिब था कि वो जाकर फेस टू फेस मिल लेगा और इसी चक्कर में 4 दिन लग गए। वापस आए, यहाँ भी ऑफिस की तवज्जो का मुंतज़िर था। पूरा दिन ऑफिस में गुजार कर थका हारा घर आया तो आते बेड पर गिर गया। वो चेंज किए बिना बेड के बीचों बीच चारों शाने चित लेटा बेसुध सोया हुआ था। आंख खुली तो मोबाइल फ़ोन बज रहा था। इसने लेटे लेटे मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो, इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम लाला साईं। दूसरी तरफ अरकम था। मुकर्रम इसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो यार? मुकर्रम का लहजा मोहब्बत और अपनायत से लबरेज था। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? इतने दिन हो गया, आप गाँव नहीं आए? अरकम उदासी से बोला। यार अभी तो कराची से आया, 4 दिन लग गए हैं वहाँ। वो मुकर्रम से काफ़ी छोटा था, अभी स्कूल में पढ़ रहा था। अब 2 दिन बाद आऊँगा। क्यों 2 दिन बाद क्यों? वो मैं आकर बताऊँगा। मुकर्रम कुछ सोच कर मुस्कुराया। तो अब गाँव का चक्कर लगा ले। अम्मा जी और आगा जी आपको मिस कर रहे हैं। आगा जान को फ़ोन दो, मैं इनसे बात करता। मुकर्रम बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा और एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अरकम ने फ़ोन आगा जान को पकड़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। कराची से कब आए हो? वो बेटे की आवाज़ सुनते जैसे जवान हो उठते थे। इन्हें अपने दोनों बेटे बहुत अजीज़ थे। इनकी सोच अपने कबीले के लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। इन्होंने अपने दोनों बेटों का रुझान कभी भी अपनी ख़ानदानी दुश्मनियों की तरफ नहीं होने दिया था। इन्होंने हमेशा इन दोनों को इस चीज़ से दूर रखा था और यही वजह थी कि मुकर्रम खान अफरीदी आला तालीम मुकम्मल करने के बाद अब अपना ज़ाती बिजनेस चला रहा था। इनके ख़ानदान और कबीले में क्या कुछ हो रहा था इसकी कभी कुछ खबर ही ना रखी थी। आज ही आए हो, आप सुनाएं, आप कैसे और अम्मा कहाँ है? मुकर्रम काफ़ी देर इनसे बातें करता रहा। आगा जी ने फिर फ़ोन बंद किया। मुकर्रम शावर लेने बाथरूम में घुस गया। शावर लेने के बाद कमरे में आया था। इसका मोबाइल में तवातर बज रहा था और न जाने कैसे अचानक इसे अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनकर अजीज़ का ख्याल आ गया। इसने कुछ याद आती आगे बढ़कर अपनी साइड टेबल की दराज खोली। सामने वो वॉलेट रखा हुआ था। इसने देरी से वॉलेट बाहर निकाल दिया। इस रोज़ वापस आकर इसने वॉलेट इसी तरह दराज में डाल दिया था और दूसरे रोज़ सुबह ही कराची चला गया। वो वॉलेट खोलते हुए बेड पर बैठ गया। वॉलेट में अच्छी खासी भारी रकम थी। सारे हज़ार के नोट थे। इसने गिनने की जहमंदी की और वॉलेट की दूसरी पॉकेट चेक करने लगा। एक छोटी सी ऑटोग्राफ बुक थी, 2-3 शॉपिंग बिल थे, एक टेलर का कार्ड था, 4-5 ब्लैक कलर की हेयर पिन थी, 2 मोबाइल कार्ड्स थे जो अभी स्क्रैच नहीं हुए थे, एक छोटा सा च्युइंगम का पैकेट था। बस इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं था। मुकर्रम ने सारी चीज़ें छोड़कर ऑटोग्राफ बुक उठाई और खोलकर पढ़ने लगा। फर्स्ट पेज पर फ्रेंड्स लिखा हुआ था। इसने अगला पेज खोला। जीस तली हूँ। यही नाम था इसका। वो नाम पढ़ते बेसाख्ता बड़बड़ाया। नाम के नीचे इसकी विश और सेल नंबर लिखा था। इससे अगले पेज पर सहरिश रियाज का नाम, इसकी विश और इसका सेल नंबर था। तीसरे पेज सानिया और चौथा रिमशा का था और सबसे आखिर में अरमीन का नाम दर्ज था। इससे आगे चंद अशार दर्ज थे और कुछ उटपटांग बातें। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। आखिरी इबारत खासी दिलचस्प थी। ये नोटबुक जिसको भी मिले बराह मेहरबानी शराफत का सबूत देते हुए हमें इस पते पर अरसाल कर दे। हम पांचों की दुआएं इसके साथ रहेंगी। इंटरेस्टिंग। इसने वो नोटबुक बंद की और फिर अपने सेल फ़ोन को देखने लगा। कुछ सोचते हुए जीस्त का नंबर डायल कर लिया। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी। हेलो, इसकी आवाज़ कुछ मसरूफ़ सी थी। अस्सलाम वालेकुम, वो मतानत से बोला। इसकी भारी गंभीर आवाज़ दूसरी तरफ कंप्यूटर पर मसरूफ़ जीस्त को बुरी तरह चौंका के रखी।
मसरूफ़ियत के बायस इसने नंबर देखे बिना ही कॉल रिसीव कर ली थी। आप कौन? इसने मुहतात अंदाज में पूछा। मुकर्रम अली ख़ान, चंद रोज़ पहले आपसे रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी। आपका नाम शायद ज़ीस्त अली है? वो पूरा तारुफ दे रहा था। जी याद आ गया, मैंने आपसे रिंगटोन ली थी, इसने मासूमियत से कहा। मैडम अगर आपको मुझसे मुलाकात याद है तो आपको ये भी याद होगा कि इस रोज़ आपका कुछ नुकसान हुआ था, कोई चीज़ गुम हुई थी। मुकर्रम ने याद दिलाया। जी सर, अच्छी तरह याद है, मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। मेरा वॉलेट गुम हो गया था, मेरी महीने भर की पॉकेट मनी थी इसमें। इसका अंदाज़ अफसोस भरा था। लेकिन अगर आपकी पॉकेट मनी आपको वापस मिल जाए तो? वह सस्पेंस पिलाने वाले अंदाज में बोला। क्या मतलब? क्या मेरा वॉलेट आपको मिला था? वो वॉलेट आपके पास है? जाने के मुकर्रम का जी चाह काश वो इस वक्त इस लड़की के चेहरे पर फैलने वाली हैरत और खुशी के तासुरात देख सकता। ड्रामेबाज औरत आओ और ना उनके चेहरे तासुरात ना जाई तू देखते सही मुंडा फसाई जा रही। जी आपका वॉलेट मेरे पास है। इस रोज़ इत्तफाकन मेरी नज़र पड़ गई थी लेकिन मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर सका। दरअसल काम के सिलसिले में कराची चला गया था। आज वापसी पर आपका वॉलेट याद आया तो फौरी रब्ता कर लिया। ओह थैंक गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा वॉलेट मुझे वापस मिल गया। थैंक यू सर, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। वो मशकूर होने लगी। इट्स ओके मैम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताएं आपका वॉलेट कहाँ पहुँचाना होगा? सर अगर आपको जहमत ना हो तो आप मेरा वॉलेट मेरे हॉस्टल पहुँचा दें। ओके मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले नहीं सर, ऑफिस जाने से पहले नहीं, ऑफिस जाने के बाद। इनफैक्ट मुझे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना होता है, सुबह सुबह लेट हो जाऊँगी। वो इसकी बात दरमियान से काटते हुए बोली थी। आप वॉचमैन से कह दीजिएगा सहरी रियाज से मिलना है। क्यों? आपका नाम तो गालबन ज़ीस्त अली। जी सर मेरा नाम ज़ीस्त अली है लेकिन मेरे बाबा और भाइयों के सिवा मुझसे मिलने की किसी को भी परमिशन नहीं है। अलबत्ता सहरिश मेरी दोस्त और रूममेट है, इसके तहत ऐसा कोई मसला या पाबंदी नहीं है। आप बहुत सुकून से तशरीफ़ ला सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है कि लड़कियों के हॉस्टल जा रहे हैं। इसने साथ साथ इसे तसल्ली दी और मुकर्रम खान अफरीदी बेसाख्ता हंस दिया। हाँ मुझे वाकई नहीं डरना चाहिए क्योंकि आप जो मौजूद हैं। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं, आप मेरे मेहमान हैं, आपकी इज्जत और एहतराम सर आंखों पे। लड़की वाकई कमाल की थी। मुकर्रम खान अफरीदी ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो रहा था। चंद लम्हों बाद फिर से शुक्रिया अदा करते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। व्हाट, तुमने मेरा नाम ले दिया? सैरिश को यकदम करंट छू गया। तो और किसका लेते यार, मजबूरी तो थी, तुम जानती तो हो मुझसे मिलने कोई और नहीं आ सकता। अजीज सुबह सुबह सैरिश को टहला रही थी। अच्छा वैसे इन्नी पाबंदियां तो होस्टल पढ़न भेजिया होया, उस बाद होस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ हर चीज़ कर ਲੈਂਦੀ है, सिर्फ मिलन मिलान ਤੇ कोई नहीं आ सकता। दो फिटे मुँह। लेकिन जीस तुम जानती हो इस तरह मेरी रेपुटेशन का क्या हो जाएगी? सहरिश गुस्से से पागल हो रही थी। सही बात है, मेरा कोई इधर नाम लवे मैं तेन पैसे ख़त्म कर दिया। कुछ नहीं होगा तुम्हारी रेपुटेशन को, और किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ये देखता फिरे कि वो आदमी तुमसे मिलने आया या मुझसे। जीस ने खफकी से कहा तो सहरिश खामोश हो गया। और क्या कहती, कितना गुस्सा करती, जो होना था वो तो पहले हो चुका था। फिर जैसे जैसे सानिया रिमशा और इनको मुकर्रम खान अफरीदी की कॉल का पता चला, इन्होंने हैरानी का इजहार किया, जबकि जीस ताश खुश थी। इसे लग रहा था कि इसने अपनी जीत की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। क्या इसने खुद कॉल की थी? सानिया मुतसब्सब थी। सहरिश से पूछ लो, जब इसकी कॉल आई तो ये जाग रही थी, बाद में सोई थी, और अगर फिर भी कोई शक है तो तुम मेरे सेल पर रिसीव कॉल्स चेक कर सकती हो। जीस के पास तमाम सबूत थे। वो सानिया को लाजवाब करके वॉशरूम में चली गई। इसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होना था। यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो खाना खाते ही सो गई, और ये तो इन सबकी रूटीन थी। सभी यूनिवर्सिटी से वापस आकर खाना खाती और शाम तक के लिए गहरी नींद सो जाती, मगर आज सभी की नींद टूटी थी। मिस सहरिश आपसे कोई मिलने आया। वार्डन ने किसी मुलाजमा को बुलाने भेजा था। सहरिश गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठी थी। ओह ठीक है तुम जाओ। वो मुलाजमा को भेजकर जीस्त पर चढ़ दौड़ी। उठो मरो, आ गया तुम्हारा आशिक। इसने जीस के ऊपर से चादर खींच ली। जीस भी हड़बड़ा कर बेदार हुई। ओह गॉड, मुझे ख्याल ही रहा किसने आना है। जीस सर पर हाथ मारती फ़ौरन चादर पर से मुंह से हटाकर बेड से उतर गई। इंतहाई उजलत में अपनी नाजुक सी चप्पल पहनती देरी से कमरे से बाहर निकल गई। इसने ये भी ना देखा कि इसका हुलिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। इसने ड्राइंग रूम में दाखिल होते सलाम किया। मुकर्रम अफरीदी टेबल पर रखा अखबार देखने में मसरूफ़ था। इसकी आवाज़ पर फ़ौरन मतवजा होते हुए सोफ़े से खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मुकर्रम ने सलाम का जवाब देते हुए इसे सरतापा गहरी नज़रों से देखा था। सफ़ेद ढीले ढाले ट्राउज़र पर रेड हाफ स्लीव टॉप पहने काफ़ी ढीले ढाले अंदाज में इसके रूबरू खड़ी थी। इससे घने घुंघराले बाल इस वक्त बिखरे हुए थे और मोटी मोटी सहरंगेज़ आंखें नींद से अचानक ताल्लुक़ टूटने का ऐलान कर रही थी, क्योंकि इस वक्त आंखों की गुलाबियाँ बोझलपन अरूज पर था। फ़ाइन सर, आप सुनाएं कैसे? वो अपना दिमाग ठिकाने लाते हुए मुश्किल कह पाई, वरना इस तरह अचानक हड़बड़ा जाने पर इसकी धड़कनें अभी तक हमवार नहीं हुई थी। लगता है मैंने इस वक्त आपको खासा डिस्टर्ब किया। मुकर्रम इसके अंदाज की सुस्ती भांप चुका था और इसके सामने सोफे पर बैठ गई। नहीं सर, डिस्टर्बेंस कैसी, बल्कि डिस्टर्ब तो आप हुए। आपको मेरी वजह से इतनी जहमत उठाना पड़ी। वो दोनों हाथों से बाल समेटती हुई बालों को एक साइड पर डाल चुकी थी। मुकर्रम अफरीदी की नज़रें पहली बार किसी लड़की को देखते हुए इस तरह बेख्तियार हो रही थी। आप कराची क्यों गए थे? जीस्त इसकी नज़रों की महवत महसूस करते हुए इसका तसलसल तोड़ने के लिए बोली। ऑफिस के काम से गया था। वो चौंक कर मतवजा हुआ। जीस्त अपने बाल दोबारा दो निशानों पर डाल चुकी थी।
आप अकेले काम करते हैं? वो जानबूझकर इधर उधर के सवाल कर रही थी ताकि मुलाकात को तूल दे सके। मेरा ज़ाती बिजनेस है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है, इसलिए ज़्यादा काम खुद ही संभालना पड़ता है। और आपकी फैमिली? वो रफ्ता रफ्ता सवालात बढ़ा रही थी। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है, काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी, अलबत्ता हम लोग 2 भाई और 2 बहनें हैं। बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं। मेरे वालिद मोहतरम, जिनको हम सब आगा जान कहते हैं, वो ख़ानदानी दुश्मनियाँ निपटाते फिर रहे हैं। वालिदा मोहतरमा ने घर संभाल रखा है, छोटा भाई 9th क्लास का स्टूडेंट है और मैं आपके सामने मौजूद हूँ। ज़ीस बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। यानी आप अभी आज़ाद फिर हैं, आप किसी खानजादी के पल्लू से नहीं बंधे? वो जैसे से छेड़ रही थी। और ऐसा होगा भी नहीं, मैं किसी खानजादी के पल्लू से नहीं बन सकता। मेरी सोच, मेरे ख्यालात अपने इलाके के लोगों से मुख्तलिफ है। मैं वहीं पैदा होकर वहीं किसी दुश्मन की भेंट चढ़कर अपने कत्ल का इरादा रखने वालों में से नहीं हूँ। मेरे लिए मेरी तालीम, मेरा बिजनेस, मेरा आज़ादाना लाइफ स्टाइल ही सब कुछ है। मैं कबीलों के फैसलों से हटकर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और इसका हक़ मुझे मेरे बाबा जान ने दिया। मुकर्रमा खान अफरीदी की बात अजीज़ को अंदर से हैरान भी करी थी और मुतासिर भी। एनीवे ये बातें तो होती रहेंगी, आप बताएं क्या लेंगे? अजीज़ ने सर झटक कर टॉपिक बदला। नो थैंक्स मैम, मैं खासा लेट हो चुका हूँ। मैंने आज थोड़ी शॉपिंग के लिए जाना था, बस आपका वॉलेट पहुँचाने की जल्दी थी, इसलिए सीधा इस तरफ ही आ गया। वो खड़ी देखते हुए फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और जेब से वॉलेट निकाल कर जीस की सिमत बढ़ा दिया। थैंक यू सर, लेकिन आपकी चाय मुझ पर उधार रही। आप जब चाहे मैं आपको चाय ज़रूर पिलाऊंगी। वो इसके पीछे गेट तक आई थी। मैं आपको ऐसी ज़हमत ज़रूर दूंगा, ये मेरा कार्ड है, आपको कोई भी ज़रूरत हो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। वो अपना कार्ड निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा रहा था। और आपको कोई भी ज़रूरत ना हो, और अगर कोई भी ज़रूरत ना हो तो? जीस ने कार्ड थामते हुए जिस लहजे और अंदाज में कहा वो समझ कर खुश दिली से मुस्कुरा दिया। तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, बल्कि मैं इंतज़ार करूँगा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला और फिर खुदा हाफिज़ कहकर रुखसत हो गया। शाम के समय अल्लाह खान पागल हो गया। खान ना सोहनी कुड़ी देख के लट्टू हो गया। अल्लाह के इन्नी सोहनी कुड़ियां उत्थे छड़ के ना सोहनी कुड़ी देख के खान का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। शाम के साए ढल चुके थे। जीस हाथ में पकड़ा वॉलेट और इसका कार्ड देखती हुई अंदर आ गई। आई एम सॉरी मुकर्रम खान अफरीदी, तुम हकीकतन एक अच्छे इंसान हो, मगर तुमको बेवकूफ़ बनाना मेरी मजबूरी है। वो दिल ही दिल में अफसोस का इजहार करती अंदर आ गई। लाख दी लानत तेरे दे चवल औरत। आकाजान मुकर्रम लाला आ गए। अरकम हवेली की छत पर खड़ा कबूतरों की उड़ान देख रहा था जब इसने हवेली की तरफ आने वाली सड़क पर मुकर्रम खान अफरीदी की लैंड क्रूज़र देखी थी, और बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ कर नीचे भागा था। खान साहब मर्दान खाने में थे। साथ वाले गांव से कुछ लोग और गांव के सरदार साहब आए हुए थे। खासा गंभीर मसला था, शायद इसलिए भामी मशवरे से कुछ तय करना चाह रहे थे, लेकिन अरकम की आमद और शोर ने इसकी बात में खलल डाल दिया। अब ना चाहते हुए भी इनका ध्यान मुकर्रम की तरफ हो चुका था। अरकम मर्दान खाने से निकलकर हवेली की रविश पर आ खड़ा हुआ। इसके गाड़ी से उतरते वो भागकर मुकर्रम के सीने से जा लगा। कैसे हो यार? वो उसके बाल बखेरते बोला। फिट एंड फाइन, वो चहक के बोला। मुकर्रम मुस्कुरा दिया। आगाजान कहाँ है? मर्दान खाने में, अरकम ने इशारा किया। अच्छा मैं इनसे मिल लूँ? तुम रोशन खान से कहो गाड़ी से सामान उतार कर मेरे कमरे में रखा है। इसने पलटकर हदायत दी और अरकम सादतमंदी से सर हिलाता रोशन खान को बुलाने चला गया। अस्सलाम वालेकुम, इसने मर्दान खाने में दाखिल होते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आकाजान बेटे को देखते खड़े हो गए। दोनों बाप बेटा बड़ी गर्मजोशी से बगलगीर हुए। फिर वो इनके साथ आगे बढ़ गया। बेटा इनसे मिलो, ये साथ वाले गांव के सरदार खुर्शीद खान है, और ये इनके बेटे गुलबाज खान और गुलरेज खान। इन्होंने बेटे को बताया। वो सबसे अनजान और नावाकिफ़ होते हुए भी इन लोगों से काफ़ी इज्जत और एहतराम से मिला था। माशाल्लाह नवाब खान, तुम्हारा बेटा तो वजाहत तुमसे भी 4 हाथ आगे है। सरदार खुर्शीद खान मुकर्रम को देखकर सराहे बिना नहीं रह सके। मुकर्रम बचपन से लेकर अब तक ज़्यादा वक्त शहर में रहा था, इसलिए आसपास के इलाके वाले से ज़रा कम ही मुलाकात होती थी। सरदार खुर्शीद खान ने इसे पहली मरतबा देखा था। औलाद हमेशा 4 हाथ आगे होती है। आगाजान मुकर्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराए। इनके अंदाज में फ़ख्र था। लेकिन तुमने इसे अपने कबीले से दूर क्यों कर रखा है? अपने पराये की पहचान ही नहीं है? इन्हें एतराज़ हुआ। अच्छा ना, इसे किसी की पहचान नहीं, या तो सबको अपना समझेगा या सबको पराया, और कबीले में सवाए दुश्मनी और कत्ल वकारत के और रखा भी क्या है? मेरी ख्वाहिश थी कि कबीले के रस्म और रवाज से हटकर मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों और एक सुकून की ज़िंदगी गुजारें। बेटियों को चौरा चौरा जमाते पढ़ाकर इनके घर पार का कर दिया। बेटा पढ़ लिख कर अपना बिजनेस कर रहा है, छोटा बेटा भी पढ़ रहा है। इन खानदानी दुश्मनी और झमेलों के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। आकाजान अपनी जगह पर बहुत खुश और मुतमिन थे। सही कहा। यानी तुम्हारे बाद तुम्हारा ख़ानदानी निज़ाम ठप होकर रह जाएगा। तुम्हारे बेटे ना तो तुम्हारी दुश्मनी निभा सकेंगे और ना ही तुम्हारा नाम चला सकेंगे। जो कुछ भी है वो बस तुम्हारी ज़िंदगी तक है। सरदार खुर्शीद खान की बात नवाब खान अफरीदी को खासी बुरी तरह चुभी थी। मुकर्रम ने भी चौंक कर इनकी सिमत देखा। इसने सरदार खुर्शीद खान को जवाब देने के लिए रब खोली थी कि आगाजान ने मना कर दिया। वो इनकी आंखों का इशारा समझ कर चुप हो गया था। सरदार, मुझे पता है मेरे बेटे मेरा नाम किस हद तक चला सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, लिहाजा ये बहस का बलस वक्त है। ज़िंदगी रही तो देखिएगा मेरे बेटे मेरा कितना नाम रोशन करते हैं। जाओ बेटा, थके हुए आओ, आराम करो। माँ और दादी से मिलो, इंतज़ार कर रही होंगी। खान साहब ने तहम्मुल से कहा। मुकर्रम उठकर बाहर आ गया। आहो, अजड़ी बन्नी बेस्ट है ना।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय लवली ब्रदर। अरकम सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा था जब लाजमा ने बताया कि मुकरम साहब इसे अपने कमरे में बुला रहे हैं। जैसे वो मुकरम के कमरे में दाखिल हुआ, कैंडल की रोशनी में बहुत एहतमाम के साथ इसे विश किया जा रहा था और अरकम खुशी और हैरत से उछल पड़ा था। लाला साईं, आपको मेरा बर्थडे याद था? वो बेहद खुश हो रहा था। तो क्या ये भूलने वाला दिन है? मुकरम इसे हाथ से पकड़कर अंदर ले आया। खान साहब, अम्मा साईं, दादी, चाचू चाची और बाकी कज़न के साथ साथ इसके बहन और बहनोई भी थे, मुकरम के कमरे में जमा थे। दरमियानी मेज़ पर बड़ा सा केक रखा था। मुकरम ये केक इस्लामाबाद से बाकायदा ऑर्डर पर बनवा कर लाया था। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। इसने खूबसूरत रैपर में पैक गिफ्ट इसकी सिम पढ़ाया। ये वजह थी 2 दिन बाद आने की। तुम इससे रोज़ आने का स्टार्ट कर रहे थे। मुकरम ने जिस मोहब्बत से इसे बताया, अरकम और भी खुश हुआ और मुकरम से लिपट गया। थैंक यू लाला साईं, थैंक यू सो मच। अब अपने लाले का ही शुक्रिया अदा करते रहोगे या हमसे भी गिफ्ट लोगे? आगाजान ने मदाखलत की। सभी ने बारी बारी इसे गिफ्ट्स दिए। मुकरम ने अपने आने से पहले आगाजान को बता दिया था कि वो थोड़ी बहुत तैयारी करवा दें, लेकिन अरकम को पता न चले, और आज ऐसा ही हुआ था। अच्छा, वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही, वनी किधर कत्ल दे बदले आएगी, अरकम दे या आका जी दे? छुट्टियां हो चुकी थी। सहरी और सानिया दोनों अपने घर गई हुई थी। बस चंद एक यहीं पर मौजूद थी, शायद वो जिनका घर में कोई भी इंतज़ार करने वाला नहीं था। बिल्कुल जीस की तरह, जिसके अपने तो थे मगर इन अपनों को इसका इंतज़ार नहीं था। और अगर वो खुद ही दिल के हाथों मजबूर होकर चली जाती तो भी वो इसे देख कर रुख मोड़ लेती। इसलिए यही बेहतर था कि वो हॉस्टल में ही रहती, छुट्टियां गुजार लेती। सो इस खाली भां भां करते हॉस्टल में फिरते हुए आज बोरियत से तंग आकर वो गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल आई थी। बहुत से शॉपिंग मॉल और बहुत सी सड़कें इसने बेमकसदी छान डाली थी, लेकिन फिर भी दिल बुझा बुझा सा था। इसका दिल अपने बाबा से मिलने को चाह रहा था, लेकिन इतने दिन हो गए थे वो इससे मिलने नहीं आए थे। बस फ़ोन पर बात होती तो इसे तसल्ली दिलासा देने लगते थे, वो चुप हो जाती और इसकी यही चुप इसके अपने ही दिल में दुख का जहर भरने लगती थी। अभी भी वो लपहें से ड्राइव कर रही थी और कुछ खबर नहीं थी कि इन रास्तों पर जा रही है। बस वो खामोशी से मुख्तलिफ सड़कों पर आवारागर्दी करते हुए दिल बहलाती फिर रही थी। और जब बुरी तरह थक गई तो अचानक सड़क किनारे ब्रेक लगा दी और अपनी सीट की पुश्त से टकाकर पलकें मूंद ली थी। इस वक्त अगर हशमत अली खान देख लेते कि तन्हाई और उदासी में इनकी बेटी का क्या हाल होता तो यकीनन कभी भी इसे तन्हा न छोड़ते। अपनी लाडली बेटी को हमेशा अपने साथ अपने सीने से लगा कर रखते। इसकी बंद आंखों में आंसू मचल रहे थे, मगर वो आंसुओं को शह नहीं देना चाहती थी। इसने सख्ती से तमाम आंसू वापस दिल के दरिया में डाल दिए थे और अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। दिल उदास हो तो वो दोस्तों से मिलना चाहिए। मुकर्रम खान ऐन इसकी गाड़ी के करीब आकर बोला और जीस ने चौंक कर आंखें खोल दी। कुछ ही दूर इसकी गाड़ी भी खड़ी थी। वो यकीनन इससे देखकर ही गाड़ी से उतर आया था। मुझे अपने दुख दूसरों के सामने रोना अच्छा नहीं लगता, वो अपने लहजे की नमी पर कंट्रोल करते हुए बोली। अमेजिंग, मैं ऐसा जुमला पहली बार किसी लड़के के मुंह से सुन रहा हूँ। लेकिन मुझे रोना अच्छा नहीं लगता क्योंकि रोने से कुछ हासिल नहीं होता, वो मजबूत लहजे में कह रही थी। औरत के आंसू में बहुत ताकत होती है, सख्त से सख्त दिल भी नरम हो जाता है। मुकर्रम दिलचस्पी से कह रहा था। आपके दिल पर आज तक किसी औरत के आंसुओं ने असर किया? वो गर्दन मोड़कर इसे देखते हुए बोली। अभी तो मेरे दिल पर किसी औरत की आंखों ने असर किया, देखते हैं कि आंसू कितना असर करेंगे। वो इसकी आंखों में देखकर कहता, दूसरे पल नजरों का ज़ाविया बदल गया। अगर आपको याद हो तो मेरी चाय उधार थी आपकी तरफ। वो बात बदल कर बोला। जी याद है, वो आहिस्ती से बोली। तो फिर कब पिला रही हैं चाय? जब आप कहें, वो आहिस्ता से मुस्कुराई। अभी मुकरम ने घड़ी देखी। शाम के 4 बजे का वक्त था। किसी भी रेस्टोरेंट या कैफ़े पहुंचते हुए यकीनन 5 बज जाते, लेकिन अभी मेरा। देखिए मैडम, आपने फैसला मेरी मर्ज़ी पे छोड़ा था, अब आप लेकिन करेंगी तो ये आपकी वादा खिलाफ़ी होगी। इसने जीत के इनकार के बावजूद गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, वरना चाहते हुए भी नीचे उतरे। क्यों? लेकिन मेरी गाड़ी, आपकी गाड़ी मेरा ड्राइवर हॉस्टल पहुंचाएगा, आप बेफिक्र रहें। वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इत्मीनान से बोला और जीत चुपचाप इसकी गाड़ी में बैठ गई। हालांकि इसे मुकर्रम खान के साथ फ्रंट सीट पर बैठना और तनहा सफ़र करना अंदर से अजीब भी लगा था। कि अब मेरे साथ मेरी गाड़ी में सफ़र करना अच्छा नहीं लग रहा? मुकर्रम खान इसकी खामोशी नोट करते हुए बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सर भारी हो रहा था। इसने अपनी कनपट्टी पर हाथ रखते हुए कहा। तो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं, इसने फ़ौरन कहा, लेकिन जीस ने इनकार कर दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। आप छुट्टियों पर अपने घर क्यों नहीं गई? मुकर्रम का सवाल सरसी से था। बस दिल नहीं चाहा, तन्हाई इंजॉय करने का मूड हो रहा था। जीस खिड़की से बाहर भागते दौड़ते मनाजिर देखते हुए बोली। गोया मैंने आपकी तन्हाई में खलल डाल दिया। नहीं, आपसे मिलना अच्छा लग रहा है, जीस ने कहा तो वो मुस्कुराया। इस बात को मैं हकीकत समझूं या महज एक मरवत? इसने गर्दन मोड़कर अपने बराबर बैठी जीस को देखा, जो सामने विंडो स्क्रीन की सिम देख रही थी। क्या मैं आपको मुरब्बत निभाने वाली लगती हूँ? मैंने तो यही सुना कि जो जैसा लगता है वो वैसा होता नहीं है। मुकर्रम इसे तंग करने के लिए बोला। तो ठीक है, आप मुझे वैसे समझ लें जैसे आप सोचते हैं। इसने लापरवाही से कंधे उचकाए। वो बेसाख्ता मुस्कुराया और रेस्टोरेंट पहुंचने तक वो जीस का मूड बिल्कुल फ्रेश और पहले जैसी हालत में लाने में कामयाब हो चुका था। जैसे ही गाड़ी पार्किंग में रुकी, मुकर्रम खुद गाड़ी से उतर के इसकी साइड पर और दरवाज़ा खोल दिया। वो नीचे उतर आई। शाम गहरी हो रही थी। जीस को वापस आने का ख्याल भी दामन की था, मगर अब वो जल्दी भी तो नहीं मचा सकती थी।
इस जामिन की मुलाकात तकल्लुफ़, झिझक और अजनबियत की आखिरी मुलाकात थी। अब इन दोनों के दरमियान बेतकल्लुफ़ दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हो चुका था। मुकर्रम अपने कदमों को अज़ीज़ की तरफ बढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। हालांकि इसने अपने आप को समझाने की, कंट्रोल करने की बारहा कोशिश भी की, मगर फिर भी इसने अपने आप को बेबस पाया था। वो जान चुका था कि इसके कदम एक ऐसी राह के मुसाफिर हो चुके हैं जहाँ से वापस पलट कर आना हमेशा ही नामुमकिन ठहरता था। लेकिन इसने ये बात अभी तक ज़ीस्त पर ज़ाहिर नहीं होने दी थी। वो इसके सामने बहुत ही नॉर्मल लापरवाह सा बन के रहता था, यूँ जैसे वो उससे सिर्फ दोस्त का ही दर्जा देता। हालांकि इसका दिल तो दोस्ती के हाथे से पहले दिन से ही दूर था। इसका दिल तो किसी और जज्बे के हाथों मगलूब हो चुका था, जिसको फ़िलहाल पोशीदा रखना ही बेहतर था। और वो इसके लिए हत्तुल मकान कोशिशें करता था, मगर कभी कभी कोशिशें बेसूद भी हो जाती हैं। इसके अंदाज़ा एतवार से आगाज़िन कई दिनों से मशकूक हो रहे थे, लेकिन कहा नहीं था। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ओए होए होए, ये मैंने कितनी भारी भरकम लाइन बोल दी है। आगाज़िन ने लग गया पता। मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तुम बस तैयार रहो। मोबाइल पर मुकर्रम खान अफरीदी का मैसेज देखकर ज़ीस्त बेड से उठ बैठी थी। ओके, मैं तैयार हो रही हूँ, इसने इसे जवाब देते हुए गहरी सांस खींची, मोबाइल बेड पर डाल के कपड़े चेंज करने के लिए उठ गई। वो तैयार होकर बाहर निकली तो मुलाजमा इंतजार में खड़ी थी। ज़ीस्त समझ गई कि मुकर्रम आ चुका है, इसलिए इसने मुलाजमा को इशारा किया, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जी बीबी। मुलाजमा सर हिलाकर पलट की और ज़ीस्त तैयार होकर जब नीचे ड्राइंग रूम में आई तो इसके कदम ठिठक गए थे और जहन में आने वाली पहली सोच ने रंगत मुतगैर कर डाली। इसका रंग जट पड़ गया। सामने इसके बड़े भाई राघिब अली खटक अपने जारहाना तेवरों समेत सोफे पर विराजमान थे और साथ इनके 2 गनमैन भी थे। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। ये इसकी बदहवासी थी कि वो आज पहली बार इन्हें लाला जी कह रही थी, वरना वो हमेशा इन्हें भाई कहती थी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी इतनी देर से? हम कब से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। इनके लहजे की सख्ती हमेशा की तरह नुमायाँ थी। मैं शावर ले रही थी, मुझे पता नहीं था कि आप आए हैं। ज़ीस्त कभी भी इस तरह घबराहट और बौखलाहट का शिकार नहीं हुई थी। वो हमेशा कुछ भी हो जाता बेखौफ और डर रहती थी, मगर आज मुकर्रम की आमद का सोचकर इसे कपकपी सी हुई थी। एक ही इलाके के 2 मुख्तलिफ पार्टियों के लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते तो क़यामत किस पे आनी थी। ज़ीस्त को खड़े खड़े अपना सीना छलनी होता महसूस हुआ। इसने एकदम छुरछुरी सी लेकर सर झटक दिया। या अल्लाह, मुकर्रम खान को रोक ले। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। खड़ी क्यों? वो इसे एक ही जगह खड़े देखकर हैरत से बोले, ओह सॉरी, आप सुनाएं, बाबा कैसे हैं? वो इतने दिनों से शहर क्यों नहीं आए? वो आगे बढ़कर सोफे पर बैठते हुए बोली, इतने फारिग नहीं है वो कि रोज़ रोज़ शहर के चक्कर लगाते फिरे। वहाँ गाँव और कबीले के 100 झंझट निपटाने होते हैं इन्होंने। मैं उनकी आमद की मुंतज़िर रहती हूँ। हर माह मेरे लिए रकम तो भेजते थे, मगर खुद नहीं आते। पहले तो मेरे हवेली जाने पर पाबंदी थी, मगर अब इनके शहर में आने पर भी पाबंदी है। ज़ीस ने सारा लिहाज भलाई ताक रखते हुए पूछा था। ये बात तुम्हें खुद पता होनी चाहिए। खैर, हम थोड़ा जल्दी में, बाबा ने कहा तुमसे मिलते हुए आए। वो उठ खड़े हुए। हाँ मैं जानती हूँ, आप बाबा के कहने पर ही आते हैं। वो अफसुर्दगी से कहती हूँ मुस्कुरा। ये बाबा ने दिया। इन्होंने खाकी लिफाफा इसकी सिंध बढ़ाया जो खासा फूला हुआ था। बाबा से कहिएगा जब वो खुद आएंगे तब ये भी ले लूँगी। वो तुम्हारे मुलाजिम नहीं है। रागिब अली को गुस्सा आया। वो मेरे वालिद तो है ना। इसने इनको जताकर कहा। तुम हमसे मुँह लगा रही हो? इसकी लापरवाही बेनियाजी पर रागिब अली खटक मुट्ठी भेज कर रह गए। वापस आते हुए इन्होंने इसे खुदा हाफिज़ भी नहीं कहा। अजीज़ वहीं खड़ी देखती रह गई। खैरियत, क्या हुआ? तुम्हारे भाई बड़े गुस्से में गए? रिमशा अंदर दाखिल होते ही बोली। वो हमेशा गुस्से में ही होते हैं, डोंट वरी। जीस ने सर झटक कर मोबाइल देखा जिसमें मुकर्रम खान का मैसेज था। वो बाहर गेट पर आ चुका है। थैंक गॉड ये पहले नहीं आया। इसने शुक्र अदा किया। कौन? मुकर्रम अफरीदी। वो कहकर बाहर आई। मुकर्रम अपनी गाड़ी से टेक लगाया इंतजार कर रहा था। आप स्मोकिंग नहीं करते? इसने गाड़ी में बैठते सवाल किया। नहीं, क्यों? तुम्हें ख्याल क्यों है? वो गाड़ी स्टार्ट करने लगी। जिस तरह आप गाड़ी से टेक लगा कर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे, मैंने अक्सर देखा कि लड़के इस तरह खड़े खड़े जब इंतज़ार कर रहे होते हैं तो साथ साथ सिगरेट फूंक रहे होते हैं, जैसे बहुत से शहाना सा स्टाइल छाड़ रहे हो। हालांकि मेरी नज़र में खासे चुगत लग रहे होते हैं। इसकी बात में मुकर्रम एकदम कहका लगा के हंसा। यानी मैं इस वक्त चुगत बनने से बच गया हूँ? इस वक्त से क्या मुराद है आपकी? कि आप वाकई स्मोकिंग करते हैं? ज़ीस ने हैरत से मुकर्रम को देखा। क्यों, क्या मुझे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए? मुकर्रम का लहजा मानी खेज था। ज़ीस इधर उधर देखने लगी। ज़ीस, मैंने आपसे कुछ पूछा है। मैं भला क्या कह सकती हूँ? आपकी मर्ज़ी है, स्मोकिंग करें या नस्वार रखें, मुझे क्या प्रॉब्लम है भला? इसके अंदाज पर वो भी ज़रा जोर से हंसा। नस्वार? वाह क्या चीज़ है, कभी देखी तुमने? नहीं जनाब, ये आप ही के इलाके का तोहफा है, आपको ही मुबारक हो। ज़ीस चिढ़कर बोली। से मुकर्रम का छेड़ना और दिल खोलकर हंसना गुस्सा दिला रहा था। कभी आपको अपने इलाके में लेकर गया तो आपको पहला तोहफा नस्वार ही दूंगा। इसने ज़ीस को छेड़ा। और साथ में चर्च से भरा हुआ एक सिगरेट भी दीजिएगा। ओह खुदा, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि आप नशे की आदी हैं। मुकर्रम ने जिस अंदाज में हैरानी जाहिर की, ज़ीस पे साख्ता हंस पड़ी। इसकी हंसी इतनी खूबसूरत थी कि मुकर्रम की नज़रें इसके चेहरे पर जम गई थी। ज़ीस, इसने आहिस्ता से पुकारा। वो इसके लहजे पर चौंकी। कुछ नहीं। वो कुछ कहते कहते रुक गया। ज़ीस मुंतज़िर रह गई। हाले भी ये शर्त तो नहीं निकली थी। ज़ीस ने जो छितर पहने ना, ज़ीस ने दोनों पासों छितर पहने। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी लव स्टोरी? वो 5 पीरियड अटेंड करने के बाद क्लासरूम से निकलकर सीधी कैंटीन आई थी और अपनी अपनी चेयर संभालने के बाद सानी ने फौरनी सवाल दाग दिया। माशाल्लाह, मेरी लव स्टोरी पूरे जोबन पे। वो एक अदाज से बोली। जोबन उतरेगा कब? सानी ने खोजती नज़रों से देख कर कहा। अल्लाह न करे कि कभी जोबन उतरे। ज़ीस ने खफकी जाहिर की। मेरी जान,
जोबन होता ही उतरने के लिए, सानिया ने इसे कुछ बताया। लेकिन यार इतनी जल्दी भी क्या है? अजीज हकीकतन अपनी लव स्टोरी का इतनी जल्दी ब्रेकअप नहीं चाहती थी। जल्दी ये क्यों नहीं कहती कि इसकी तरफ से देर है, वो तुम्हारे साथ महज दोस्ती इंजॉय कर रहा है, तुम्हें कभी भी प्रपोज नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें खुद पता होगा कि तुम्हारे इलाके के मर्द शहरी अंदाज़ तो बाहर की लड़कियों को बीवी के रूप में पसंद नहीं करते। सानिया ने तमस्कर से कहा, लेकिन मुकर्रम खान मेरे इलाके के तमाम मर्दों से मुख्तलिफ है, इसकी सोच आज़ाद है। अजीज़ ने यकीन से राय दी थी। हाँ, ऐसे मर्दों की सोच आज़ाद होती है, मगर सिर्फ शहर की हदूद तक। सानिया मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन मुकर्रम की सोच महदूद नहीं है, इसकी सोच शहर और गांव दोनों के लिए यकसा है। अजीज़ के अपने कहे पर डटी हुई थी। अच्छा, इतना जानने लगी हो इसे? इसके लहजे का तमस्कर हमस था। यार किसी को जानने के लिए एक लम्हा भी काफ़ी होता है, जबकि तुम तो इसके साथ काफ़ी वक्त गुजार चुकी हो। सानिया ने इसका जुमला मुकम्मल किया, लेकिन जीस ने इसकी बात सरसरी से ली। ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं, इसने कंधे उचकाए। तुम लोग अपनी बहस में पड़ी रहो, हम तो अपनी पेट पूजा कर लें। रिमशा और अरमीन ने बर्गर और कोल्ड ड्रिंक अपने सामने टेबल पर सेट करते हुए कहा। एहसान आज़म का क्या बना? कोई सामना, कोई मुलाकात हुई? जीस बर्गर खाते हुए बोली। रिमशा चौंक कर मतवज्जा हुई। मैं जीस तली नहीं हूँ जिसकी तरफ कोई भी मतवज्जा हो जाए, मैं बहुत ही आम सी लड़की हूँ। रिमशा ने चिढ़कर कहा। बात आम या ख़ास की नहीं है, बात जो भी है जीस, मैं अब दिल को चलाना छोड़ रही हूँ, बस, और नहीं भाग सकती। रिमशा ने जैसे हथियार डाल दिए थे। जीस यूनिवर्सिटी के गेट से निकलकर अपनी गाड़ी की सीम पड़ रही थी जब इसके कदम किसी एहसास के तहत थम गए। इसने एकदम पलटकर दाएं बाएं देखा और फिर अचानक हैरत और बेयकीनी से देखती रह गई। बाबा! वो बेख्तियार भागकर इनके करीब आई। वो बड़े प्यार और बड़े शौक से दूर खड़े से देख रहे थे। इनके साथ इनके गनमैन ड्राइवर और इनका खास मुलाजिम भी था। इन्होंने बाजू फैलाकर जीस को सीने में भेज लिया। मेरा बच्चा, मेरी जान, कैसा है? इन्होंने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए इसकी पेशानी चूम ली। मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं हर वीकेंड पर इंतज़ार करती रही। जीस ने छूटते शिकवा किया। पुत्र, तुम्हें पता है तुम्हारा बाबा तुमसे इतने दिन दूर नहीं रह सकता, बस थोड़ा बीमार पड़ गया था इसलिए सफ़र नहीं किया कि थकन हो जाती। और तुम्हारे बहन भाई भी मना करते थे कि बाबा सफ़र से परहेज़ करें, कोई ना कोई रोक लेता था, इसलिए नहीं। हशमत अली खान इसे समझा रहे थे। मेरे बहन भाई? वो आहिस्ती से बड़बड़ाई और हशमत अली खान चुप से हो गए। वो जीस की कैफियत समझते थे। अब आप कितने दिन के लिए आए? एक दिन या एक रात? इसका लहजा तलख था। हम तुम्हें लेने के लिए आए, चंद दिन हमारे साथ हवेली चलो, हमारे सामने रहो ताकि हमें तसल्ली तो हो। इन्होंने इसका सर थपका। मैं हवेली तो चलूँ, लेकिन आपके बीवी बच्चों को तकलीफ़ होगी, वो फिर से तंग होंगे। होने दो, जितना इनका मुझ पर और हवेली पर हक है, इतना तुम्हारा भी है। तुम्हें किस बात का डर है? वो सर झटक कर बोले। डर तो खैर मुझे किसी का भी नहीं है, बल्कि वो लोग मुझसे डरते हैं। इनको लगता है जैसे मैं इनसे हवेली छीनने आ गई। वो कहते हुए ज़रा सा हंसी। तो फिर चलो, इनको डराने के लिए चलो। वो भी मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सानिया, सहरिश, अरमीन और रिमशा चारों इकट्ठी इनको देखकर इनकी तरफ ही आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो आप? इन्होंने बारी बारी इनके सर पर हाथ फेरा। अल्लाह का शुक्र अंकल, सब ठीक है। पढ़ाई कैसी जा रही है? इन्होंने नरमी से पूछा। जीस इनके बालों से लगी खड़ी थी। ये तो अब जीस से पूछे, वो हम सबसे लाइक और ज़हीन है। सहरिश ने मुस्कुरा कर कहा। यानी आप ज़हीन नहीं हो? हशमत अली खान मुस्कुराए थे। अंकल मैंने ये तो नहीं कहा था। वो खफकी से बोली तो वो कहका लगाकर हंसती और जीस भी बाकी सबकी तरह अपनी हंसी नहीं रोक पाई। जीस, हॉस्टल नहीं चलना? इन्होंने जीस को इत्मीनान से खड़े देखकर पूछा तो अपने बाबा को सवालिया नज़रों से देखने लगी। तुम इनके साथ हॉस्टल जाओ, हम थोड़ी देर तक एक काम निपटा कर आते हैं। इन्होंने इसका कंधा थपका और जीस सर जाकर इनके साथ गाड़ी में आ बैठी थी। क्या बात है अंकल, क्या कह रहे थे? सहरिश ने पूछा। मैं गाँव जा रही हूँ, जीस ने गाड़ी रोड पर डालते हुए कहा। है यूँ अचानक क्यों? इन्हें छंबा हुआ। बस, बाबा खुद लेने आए तो इनकार तो नहीं कर सकती ना। इसने कंधे उचका कर कहा। अपने बेवकूफ़ को क्या कहोगी? इससे मिले बगैर चली जाओगी? सानिया ने जिस अंदाज से कहा जीस खूब समझती थी, मगर ऐसी बातों से टेम्पर लूज़ करने वाली भी नहीं थी। मेरा बेवकूफ़ मेरा इंतज़ार करेगा तो इसकी बेकरारी और बढ़ेगी, इसकी तड़प में इजाफा होगा। वो बड़े पुरलुत्फ़ अंदाज से कहकर मुस्कुरा रही थी। तानिया मज़ीद कुछ न कह सकी। जीस अक्सर मुकर्रम अली खान अफरीदी के मामले में इनकी बोलती बंद कर डालती थी। वो तो तेरी भी अगे जाके होएगी, तेन छितरां दी जिहड़ी कमी है ना, वो तेन मुकर्रम अली खान ही तेरी पूरी करेगा। हाकम अली खान के 2 बेटे और 1 बेटी थे। हशमत अली खान दोनों बहन भाई से बड़े थे। हशमत अली खान और उनकी बहन खरसंद बचपन से ही अपनी फुप्पी के बच्चों से मंसूब से। खरसंद अपने मंगेतर को बचपन से चाहती थी, जबकि हशमत अली खान को अपनी मंगेतर ज़हरा से बिला वजह की चिढ़ थी। वो इसे ज़रा भी पसंद नहीं करते थे और ना ही से शादी का कोई इरादा रखते थे। शायद इसलिए भी कि इन्हें अपनी क्लास फेलो फातिमा पसंद थी और वो इनके लिए अपने दिल में मोहब्बत का जज्बा महसूस करते थे। लेकिन इनका ये जज्बा ऐसा था कि किसी से भी ढका छुपा नहीं रह सका और इसकी खबर फातिमा को भी होगी। इसने खुद हशमत अली के पास आकर इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो इससे इजहार मोहब्बत करने खड़े हो गए थे। फातिमा ने बारहा रोका और दामन बचाने की कोशिश की, मगर वो ज़्यादा देर मोहब्बत की आंच से दूर न रह सकी और इनकी मोहब्बत का दम भरने लगी। यूँ इन दोनों के इश्क की खबर जंगल की आग की तरह फैली और यूँ खबर घर वालों तक पहुँच गई।
پھپھی نے فوراً شادی کو شوشہ چھوڑ دیا. حشمت علی خان لاکھ ہاتھ پیر مارنے اور بھاگنے کے باوجود نہ بچ سکے اور زہرا سے شادی کے لیے مجبور ہو گئے, کیونکہ مقابل ان کی بہن دلہن بنی بیٹھی تھی, اس پر آج مشکل تھا. لیکن جب دونوں طرف سے رخصتی ہوگی تو حشمت علی خان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر آ گئے اور سب کی مخالفت کے باوجود فاطمہ سے نکاح کر لیا. دوسری طرف زہرا نئی نویلی دلہن کے روپ میں ان کا انتظار کرتی رہ گئی اور یوں ان کی نفرتوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. حشمت علی خان بہن کا گھر اجڑنے کے خیال سے زہرا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے, لہٰذا یہ رشتہ نبھانا ان کی مجبوری تھی. اور اپنی مجبوری اور شوق کو نبھاتے نبھاتے وہ شہر و گاؤں میں بٹ کے رہ گئے. وہ ہمیشہ گھن چکر بنے رہتے. حویلی والوں نے فاطمہ کو قبول نہیں کیا اور حشمت علی زہرا کو قبول نہیں کر سکے تھے, لیکن پھر بھی ان کی بسر ہو رہی تھی اور رشتے بھی چل رہے تھے. زہرا 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی, 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی. آہو زہرا قبول نہیں سی, ویسے ہر چیز ویسے بچے بھی ہو گئے, لیکن فاطمہ کے ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی. حشمت علی خان کو بڑی خواہش تھی کہ فاطمہ ان کے بچے کی ماں بنے, لیکن اس خواہش کو پورا ہونے میں سالوں لگا دیے تھے. اور جب زیست پیدا ہوئی, حشمت علی اور فاطمہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانے نہیں رہا. انہوں نے بیٹی کو بڑے لاڈ پیار اور ناز نخروں سے پالا تھا. فاطمہ نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن مزاج کے لحاظ سے وہ باپ پہ گئی تھی, ضدی اور تیز. چتر مار دی فاطمہ, مزاج سیدھے کر دیں دی, گندی اولاد دے. فاطمہ حشمت علی کے سامنے ایسا کہتی تو وہ دل کھول کے ہنستے اور سینہ تان کے خوشی کا اظہار کرتے کہ ان کی بیٹی ہے تو ان پر ہی جائے گی نا. وہ شہر آتے تو زیست کو اپنے پاس اپنے سینے پر سلاتے اور باپ کی موجودگی ماں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتی. دونوں باپ بیٹی کی خوب جمتی تھی. جتنے دن وہ شہر میں رہتے وہ کھل کر انجوائے کرتی اور حشمت علی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے, اور انہی خوشیوں بھرے دنوں میں ان کی خوشیوں کو نظر رکھی. کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک فاطمہ کے دل میں درد اٹھا اور پھر ہمیشہ کے لیے دل کی حرکت بند ہو گئی. 15 سالہ زیست ماں کی اچانک ناگہانی موت پر گمسم ہو کر رہ گئی. اس کے لیے زندگی میں سب سے بڑا ستون اس کی ماں ہی تھی, اور اب وہی ستون مٹی کا ڈھیر ہو گیا تھا. حشمت علی خان نے اسے زندگی کی طرف لانے کی بہت کوششیں کی, لیکن اس کی چپ نہ ٹوٹی. اب حشمت علی اسے تنہا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے. اتنے بڑے گھر میں ملازموں کے رحم و کرم پر وہ کیسے رہ سکتی تھی. لہٰذا وہ اسے اپنے ساتھ حویلی لے آئے, لیکن حویلی میں اس کا وجود کسی کو بھی گوارا نہیں تھا. اس کے دونوں بھائی راغب علی اور جاذب علی اس کے قریب سے نفرت سے منہ موڑ کر گزر جاتے اور وہ دیکھتی رہ جاتی. اس کی بہن, اس کی دادی اور دادا کے, اس کے چچا اور پھوپھی, کسی نے بھی کبھی اس سے ٹھیک طرح بات نہیں کی تھی, اور زہرا اس کے لیے سراپا نفرت تھی. وہ گزرتے گزرتے اسے 2-4 سنا بھی دیتی. حشمت علی خان کو پتہ تھا کہ زیست کے ساتھ سب کا رویہ کیسا ہے, لیکن وہ سب کو ایسے رویے سے روک نہیں سکتے تھے. انہوں نے بس اپنے بیٹے اور بیٹی کو بلا کے سمجھایا کہ وہ زیست کو دکھی نہ کیا کرے, وہ ان کی بہن ہے آخر. لیکن ان تینوں نے اسے بہن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. وہ اپنی ماں کی زبان بول رہے تھے. حشمت علی بے بس ہو گئے. پھر جیسے زیست کے میٹرک کا رزلٹ آیا, اس نے حشمت علی سے فرمائش کی کہ اسے کالج میں ایڈمیشن لے دیں. انہیں اس کی پڑھائی پر کوئی اعتراض نہیں تھا, بس اعتراض تھا تو شہر میں رہنے کا, کہ وہ کس کے پاس کیسے رہے گی. سو زیست نے ہاسٹل کا آپشن سامنے رکھ دیا, اور بلاخر وہ مان ہی گئی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں حویلی میں رہ کر وہ حویلی والوں کے اذیت ناک رویے کا عذاب سہ رہی ہے. لہٰذا انہوں نے بیٹی کو آزاد زندگی جینے کا پروانہ سونپ دیا تھا, اور وہ تب سے اب تک ہاسٹل میں رہتی آ رہی تھی. پہلے کالج, پھر یونیورسٹی, اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری تھا. پہلے سمیسٹر میں ٹاپ کرنے پر حشمت علی نے اسے گاڑی گفٹ کی تھی. وہ BS آنرز کی اسٹوڈنٹ تھی, پورے ڈپارٹمنٹ میں ذہین اور لائق سمجھی جاتی تھی, اور حشمت علی کو اس پر فخر ہوتا تھا. لیکن ان کے دوسرے بچے چل کے رہ جاتے. تو میری بات سنو نا, ویسے تو حشمت علی نے بڑا پیارا ہے, لیکن جدو بنی دے پاری آنی تو پھر وہ دوسری تھی چھڑ کے زیست نظر آنی ہے. سلام دادی, کیسی ہیں؟ زیست حشمت علی خان کے ساتھ گاڑی سے اتر کر سیدھی دادی کے قریب آئی, جو لان میں موڑے پہ بیٹھی زہرا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی. ہاں ٹھیک ہوں. انہوں نے بس سرسری سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, حالانکہ وہ 7واں بات حویلی آئی تھی. زیست نے پلٹ کر حشمت علی خان کو دیکھا, ایک نظر دیکھا, انہوں نے اسے درگزر کر اشارہ کیا. سلام آنٹی. اس نے مروتاً زہرا کو بھی سلام کیا, حالانکہ اسے دیکھ کر دوسری طرف منہ پھیر چکی تھی. آؤ بیٹا اندر چلو, تھک گئی ہو, آرام کر لو. وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھ گئی, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ زہرا سلام کا جواب نہیں دے گی. بڑی مہارانی, تھک گئی ہوگی. زہرا کو آنکھ چھونے لگی. اب یہ سلسلہ تب تک رہنا تھا جب تک زیست نے حویلی رہنا تھا. ارے زہرا, تو کیوں خون چلاتی ہے اپنا؟ 4 دن کے لیے آتی ہے, چلی جاتی ہے. دادی نے بہو کو ٹھنڈا کرنا چاہا. 4 دن بھی بہت ہوتے ہیں اماں. بڑا خان جتنی دیر یہ منحوس یہاں رہتی ہے, اس کے آس پاس پھرتا ہے, اسی کی فکروں میں لگا رہتا ہے. ارے اس کی بیٹی ہے, فکر تو کرے گا ہی. دادی کا بھی جواب نہیں تھا, کسی کی بھی طرفدار ہو جاتی تھی. بیٹی تو خزینہ بھی ہے, اس سے تو کبھی اتنا پیار نہیں کیا. پگلی خزینہ پاس جو رہتی ہے, اور وہ بیچاری ہمیشہ شہر میں. کیا ہوا اماں سائیں؟ خزینہ قریب آ بیٹھی. تمہارے بابا جان کی چہیتی آئی ہے شہر سے. او, پھر تو بڑی خاطرداریاں ہوگی. خزینہ کے لہجے سے جلن نمایاں تھی. ہاں شروع ہو چکی ہیں, وہ دیکھ لو. انہوں نے ملازمہ کی طرف اشارہ کیا, جو گاڑی سے زیست کا بیگ نکال کر اندر لے جا رہی تھی. واہ کیا قسمت پائی ہے, ماں نے بھی ہمارے سینے پر مونگ تلتے ٹھاٹھ سے زندگی گزاری, اور بیٹی بھی عیش کر رہی ہے, اور ایک ہم میں اس 4 دیواری میں بند. خزینہ کو اپنی زندگی پر افسوس ہوا تھا. بس بیٹا صبر کرو, اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے. زہرا نے بیٹی کو دلاسا دیا, اور دادی وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئی. انہیں پتہ تھا کہ ان کا یہ دکھ بڑا ڈرامہ اب دیر تک چلے گا. زیست باتھ روم سے باہر نکلی تو موبائل کی ٹون پر چونک گئی. اس کا موبائل بیڈ پر رکھا تھا اور متواتر رنگ ہو رہی تھی. اس نے سیل اٹھا کر دیکھا, مکرم کالنگ پڑھ کے وہ ہلکے سے مسکرائی. ہیلو. تولیہ سائڈ پر رکھتے ہوئے کال اٹینڈ کی. کہاں تھی تم؟ کب سے فون کر رہا ہوں. مکرم کا انداز استحقاق بھرا تھا.
शावर ले रही थी, इसने मुख्तसरन बताया। ओह, मैं समझा सेल कहीं छोड़ गई हो। नहीं जनाब, गांव आते हुए मैं सेल कैसे छोड़ कर आ सकती थी? अजीज़ ने बालों में हाथ फेर कर इन्हें समझाने की कोशिश की। गांव? मुकरम बुरी तरह चौंका और जवाबन अजीज़ भी ठिठकी, लेकिन फिर जल्दी संभलते हुए बोली, जी जनाब, गाँव, मेरा आबाई गाँव। बाबा मुझे लेने गए थे, इसलिए इनके साथ आना पड़ा। लेकिन तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुकरम के अंदाज में अफसुर्दगी और शिकवा खुला था। मैंने आपके नंबर पर ट्राई किया था, मगर आपका नंबर ऑफ था। जीस्त, मेरा नंबर ऑफ हो भी तो महज थोड़ी देर के लिए होता है। यकीनन मैं किसी मीटिंग में था, तुम बाद में तो बता सकती थी। रफ्ता रफ्ता मुकरम की आवाज़ पे अफसोस के साथ साथ उदासी का गुबार भी छा रहा था। बता देती तो आप क्या करते, मुझे रोक लेते? जीस्त लापरवाही से कहती गीले बालों समेत बेड पर नींदराज हो गई। तेरे सारे जेड़े नाज रख रहे ना कटेगा। हाँ, मैं रोक लेता, क्योंकि हम एक दूसरे से मिले हुए 3 दिन हो चुके हैं। इसकी बेकरारी हर लफ्ज़ हर अंदाज से आया थी। 3 दिन हो चुके हैं, 3 साल तो नहीं। जीस्त अभी भी नॉर्मल थी, वो मुकरम की बेचैनी से हंस उठा रही थी। तुम 3 साल कहती हो, मुझे तो 3 सदियां लग रही हैं। इसने जैसे अपनी बेकरारी का आलम बताया था और जीस्त एकदम चुप रह गई। प्लीज़ तुम कल ही वापस आ जाओ, इसकी खामोशी पर मजीद बोला। इतनी जल्दी कैसे आ सकती हूँ? जीस्त ने हैरत से कहा। कोई भी बहाना कर दो यार, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़। उफ मुकरम, आप पागल हो गए। मैं इतने माह बाद गाँव आई हूँ और एक रात को सार के फिर वापस शहर आ जाऊँ, ये नहीं हो सकता। इसने इनकार किया। अब खामोश होने की बारी इसकी थी और भी 5-6 सेकंड खामोश रहने के बाद इसने चुपचाप फ़ोन भी बंद कर दिया। पहले तो अजीज़ को कोई एहसास ना हुआ, मगर जब इसने कुछ भी कहे बगैर फ़ोन बंद किया तो इसे एहसास हुआ को काफ़ी बेमरबती का मुजाहरा कर गई है। इसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, बल्कि नॉर्मल तरीके से समझाना चाहिए था। इस तरह तो अपने किए पर खुद ही पानी फेर देती। हाले भी देख ला, हाले भी इन्हें अपनी शर्त अजीज़ आ, इन्हें छितरा की कमी है, बहुत चंगा होएगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ। इसने जल्दी से नंबर डायल किया। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी, मगर वो रिसीव नहीं कर रहा था। मुकरम, प्लीज़ कॉल रिसीव करें, इसने मैसेज लिखकर सेंड किया। तुमने जब आना हो आ जाना, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब भी फ़ौरन है। लेकिन मुकरम, बस भाड़ में क्या मुकरम, वो बड़ी तेज़ी से मैसेजेस का जवाब दे रहा था। भाड़ में नहीं, मेरे दिल में, जीस ने मुस्कुराते हुए लिखा और सेंड कर दिया। अगले 15 सेकंड में मैसेज के बजाय इसकी कॉल आ गई। जीस के लबों की मुस्कान गहरी होगी। हेलो, वॉइस की से बोली। क्या कहा तुमने? मुझे ऐसे इसकी ज़ुबान से सुनना चाह रहा था। जो आपने पढ़ा? वो अपनी मुस्कुराहट रोकने लगी। मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, तुम दोबारा कहो, वो मचल रहा था। मैं दोबारा सेंड कर देती हूँ, आप ठीक से पढ़ लीजिए, वो शरारत से बोली। जीस, क्या चाहती हो? वो जिच होने लगा। आपको तंग करना चाहती हूँ। यार मैं तो पहले से तंग हूँ, और कितना करोगी? वो गहरी सांस खींच कर बोला। इतना कि आपके आसपास रहने वालों को भी पता चल जाए, वो दिलकशी से बोली। पता चल चुका है, सबको पता चल चुका है कि मुकर्रम खान अफरीदी किसी का दीवाना हुआ फिर रहा है। आगा जान मुझे खासी मशकूक नज़रों से देखते हैं। अरकम मुझसे छोटा है, मगर बातों बातों में वो भी मुझे छेड़ने की कोशिश करता है। अम्मा अलग मुझे कुरेदती रहती हैं। सब जानने के लिए बेचैन है कि मुकर्रम खान को बेचैन करने वाली हस्ती कौन है। वो बेकरारी से बोल रहा था। तो आप बता देना कि वो हस्ती कौन है। जिसके अंदाज की लापरवाही हवस थी। पहले इस हस्ती को तो बता दो। ये भी ठीक है, वही अक्सर अनजान बनते हुए बोली। अजीज, वाकई मेरे हाल दिल से अनजान हो या फिर अनजान बनने की कोशिश करती हूँ? मुकरम जैसे साफ साफ बात करने पर तुल गया। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम खूब समझती, तुम वापस आ जाओ, फिर बात करूँगा। इसने हतमी फैसला करते हुए फ़ोन बंद कर दिया और अजीज पे साख्ता हंस पड़ी। मतलब तुम वाकई खूब समझती हूँ, इसने कहते हुए हेयर ब्रश उठाया, बालों में फेरने लगी। सुबह अजीज़ की आवाज़ अच्छे खासे शोर की आवाज़ पे खुली। इसने एक लम्हे के लिए समझने की कोशिश की वो कहाँ पर है। फिर मलजे से अंधेरे में से बड़ा वसी कमरा, ऊंची छत और दीवार की लकड़ी की अलमारी नजर आई तो एहसास हुआ वो हवेली में है। और जैसे तमाम हिस्सियत पैदा हुई, वैसे शोर की आवाज़ परेशानी भी जाग उठी। वो तेरी से बेड से नीचे उतरी, चप्पल पहनकर बाहर आ गई। मैं कत्ल कर दूंगा खुर्शीद खान के बेटे को। वो जानबूझकर मेरे सामने है। इसे पता भी था कि मेरे सामने मेरा दुश्मन है, इसने मेरे बजाय इसकी साइड ली। अगर इसे इन्हीं की तरफदारी करनी है तो हमसे क्यों ताल्लुकात बना रखे हैं? रागिब अली खान ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़े धाड़ रहे थे। जिसने नासमझी वाले अंदाज में आंखें फैलाकर इनको देखा। वहाँ तकरीबन हवेली के सभी अफराद मौजूद थे और सभी के चेहरे पर परेशानी थी। पागल मत बनो रागिब खान, तुम्हारी दुश्मनी बादल खान से है। खुर्शीद खान के बेटे से दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हो? हशमत अली खान ने इसे टोका, मगर रागिब खान के सच पर गुस्से की आग सवार थी। ये मेरी अना का सवाल है बाबा जान, अगर इनको कत्ल न किया तो खुद कत्ल हो जाऊंगा। मैं इनको छोड़ भी दूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। रागिब खान वाकई सच कह रहे थे, लेकिन हशमत अली खान को ये सच मंजूर नहीं था। हम सुलह सफाई करवा देंगे तुम दोनों की। ये तो फिर बेगैरती वाली बात हुई ना। रागिब खान किसी तौर मानने पर तैयार नहीं थे, मानने वाले नहीं थे। तो हम तुम्हारी गैरत की भेंट किसी की ज़िंदगी कैसे चढ़ा दें? जिनकी ज़िंदगी है ये इनको सोचना चाहिए। गुलबाज ने अच्छा नहीं किया मेरे मुकाबले पर आकर। रागिब अली खान गुस्से से फनका रहा था। अजीज़ दिन की इस कदर सफाकी पर छुरछुरी लेकर अफसोस से सर छिटकती वापस कमरे में आ गई। ऐसे हंगामे तो यहाँ आए रोज़ होते थे। ज़्यादा हाथ रागिब अली खान का ही होता था। हालांकि हशमत अली खान ने इनको नकेल डालने के लिए इनकी शादी भी नौजवानी में कर दी थी। अब इनकी 5 साल की बेटी भी थी, मगर फिर भी इनके अंदाज़-ओ-त्वार और मजाज नहीं बदला था, जिस पर हशमत अली खान हमेशा खौफ रहते थे। वो हर किसी से दुश्मनियाँ नहीं पाल सकते थे, लेकिन रागिब अली खान बाप की बात ज़रा कम ही सुनते थे। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर साथ कीजिएगा। इंशाल्लाह
کل ملیں گے لاسٹ ایپیس پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ.